وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، نبیوں کے سردار، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کی محبت بھری بستی میں تقریر کی حیثیت سے پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ماشاءاللہ لوگ اچھے ہیں، اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے۔ میری سب سے تو ملاقات نہ ہو پائی، چند لوگوں سے ہوئی تھی، اور سب کے نام بھی نہ یاد نہیں، جیسے یاسین بھائی ہیں، انہی کا نام یاد ہوا۔ اور یہ بھی مت سمجھیو کہ سب سے زیادہ قریبی میرے یہی ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے لیے سب برابر ہیں، جو مسلمان ہیں وہ اسلامی رشتے کے میرے بھائی ہیں۔ بے شک۔ مگر جو تھوڑا اچھا کام کرتا ہے تو وہ تھوڑا اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ تم بہت پیارے لگ رہے ہو، اور تم سے زیادہ اچھے نا وہ لگ رہے ہیں جو پٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ایسے بریانی کی پلیٹیں آنے والی ہیں بس، اور ہم آپ بیٹھو سمجھے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارے گاؤں میں کوئی ٹیمپو ہے یا نہیں؟ اگر ٹیمپو ہو تو انہیں بھیج دو، اور ٹیمپو نے بٹھا کے یہاں تک چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ ٹیمپو سے آئیں گے، ویسے تو آئیں گے نہیں۔ ندی میں نا وہ ناؤ پہ چلتے تھے، ناؤ پہ ندی میں، تو ایسے کتنے اطمینان سے، جیسے دیوار روکنے کے لیے نہ رکھا گیا۔ اب بھی اٹھیا ہو یا کچھ اور کہلوا ہوگا مجھ سے؟ ماشاءاللہ اٹھیں گے کیوں نہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ دیکھیو ایک بھی بچا کیا؟ ماشاءاللہ سب بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، وہ پٹیلہ لگ تو منڈا رہا، پٹیلہ بھی کہتا ہوگا اچھا جلسہ ہوا، میری گردن پہ جوتے چپل لے کے چڑھ گئے۔ اب دعائیں دیتا ہوں۔ ایک بھائی وہ آڑ میں سے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے، مجھے پوری امید ہے۔ آ جاؤ، تم ہی سے کہہ رہے ہوں، ادھر کہاں دیکھ رہے ہو؟ وہ ہو گئے ڈی جے کی آڑ میں۔ اچھا آ جاؤ نا، یا میں آؤں ادھر کو؟ آ جاؤ۔ ماشاءاللہ بھائی، اتنے پیار سے، اتنی محبت سے تم نے مجھے بلایا۔ یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد یونس صاحب قبلہ، تو تمہیں پٹیلی والی بات اچھی لگی، نوٹ دینا ہے؟ اچھا، ویسے ہی اچھی لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ ہمارے امام صاحب قبلہ، قاری جلیس صاحب قبلہ، اور بہت شاندار نظامت کر رہے ہیں، قاری دلشاد صاحب آپ ہی کے بستی کے ہیں، اور شاعر اسلام سمجھے حکیم صاحب قبلہ، نور الدین منظر صاحب قبلہ، پھر بھی کسی نہ کسی کا نام رہ جائے گا۔ یہاں ہمارے بزرگ سے لے کر کے اس طرف تک، حضرت دھیان رکھیو، تھوڑے ادھر ہی رہیو، تھوڑے سے ادھر کوئی رہیو، ہاں کونے پہ ہو، کہو سبحان اللہ پڑاک سے نیچے، اس کا بھی تھوڑا خیال رکھیو، ہاں تھوڑے سے ادھر ہی کو رہیو۔
मगर गिरेंगे नहीं माशाल्लाह। ये हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी है, इन्होंने चने की रोटी खाई है। हाँ, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब कितने अच्छे लग रहे हैं, अब थोड़े साइड हो गए, वरना वहां से हिल नहीं रहे थे, जैसे फेविकोल से जोड़ कर रखा है इनको। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदका व तुफैल मेरे मौला इस बस्ती पर करम फरमा, आमीन, रहम फरमा, आमीन, फजल फरमा, आमीन। तो सारे हजरात हमारे इमाम साहब क़िबला से लेकर के इस तरफ, ये सब सर के ताज हैं। मुझे नाम भले याद नहीं है, मगर नबी का फरमान जरूर याद है। बेशक बेशक। आका फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, जी जी, कुछ पढ़ना नहीं, खाली देखना। आका फरमाते हैं, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन फरमाते हैं? आका। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शुरू हो जाऊं? जी जी। आका फरमाते, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के लायक हो, ये जलसा किया है, जी, खुशकिस्मत हो। जलसे से बड़े फायदे। नबी फरमाते, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद। और एक बात और बताऊं, एक बात बताऊं, मैं जो बात कहूंगा ना, पक्की और ठोस और जिम्मेदारी से, फुसफुसी कह के नहीं जाऊंगा मैं। जो बात कहूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में और पूरी दलील देके जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे गांव में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ। बेशक बेशक। अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। तो एक एक बात पर तवज्जो रखना। आका फरमाते, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल कर लम्मा की गोद से कब्र तक। सुभान अल्लाह। कहां तक इल्म हासिल करो? माँ की गोद से कब्र तक। अब हो सकता है इनके जहन में ये बात आ जाए कि यार ये पिंडाल लगाया, ये सारे काम किए, जलसा हुआ, एक रात में सब कुछ खत्म हुआ, इससे फायदा क्या हुआ? इनके जहन में आ जाए, या इनके आ जाए, या मेरे ही जहन में आ जाए। मैं सवाल करता हूं, अब जवाब देता हूं। नबी फरमाते हैं, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। बेशक। 50 साल का वो भी इल्म हासिल करे, 60 साल का वो भी करे, 70 साल का वो भी करे, मगर हजरत भी पढ़ाते और भी पढ़ाते हैं। हिंदुस्तान में कोई मदरसा ऐसा नहीं जहाँ 40-50 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो। जी जी, बेशक। हेलो, अच्छा अच्छा, पानी वानी इसमें तेलुल पूरा है, ध्यान रखिए। अच्छा, लाइट चली गई थी, समझे? माइक बहुत प्यारा बोल रहा है, वैसे हकीकत में अच्छा बोल रहा है। तो कौन सा ऐसा मदरसा जहां पर बुजुर्गों का दाखिला होता हो? तो फिर इल्म कहां हासिल करेंगे? इस हदीस पे अमल कहां होगा? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे,
तुमने ये काम किया, बहुत अच्छा किया। 150 या 500 रुपए चाय में उठा देते हो, गुटके में उठा देते हो, मेहमान नवाजी में खत्म कर देते हो। अब तुमने ये जलसा किया, या जलसे जो होते हैं उसको जलसा नहीं बल्कि एक रात का मदरसा समझा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझा करो बोलो? रात का मदरसा। अब जरा इल्म हासिल करो, जरा पढ़ो और सीखो। देखना कितना इल्म है, कितना इल्म है। अपने ऊपर गौर करना, क्योंकि मदरसे नहीं थे। ये जो मदरसे में पढ़े ना, इनको छोड़ के एक बात कहता हूं, लग रहा तो नोट ज्यादा देते हैं, तकरीर कम सुनते हैं। लेकिन सुनो, तवज्जो। अरे वाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब जरा सुनो, गौर करो प्यारे, जरा सुनो। हमारे यहां मदरसा होता ना, अब देखना इस तरफ से लेकर के इधर तक एक जुमला दूंगा, अंबिया और रसूलों के बाद। हाँ, तवज्जो रखो मेरी तरफ। मैं बहुत आराम से सेट कर रहा हूं, पहले सुन लो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं? खलीफा अव्वल। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। मगर यहां से लेकर के यहां तक किसी को हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम मालूम नहीं। अगर हो तो खड़े होकर बता दो। मुझे मालूम था, क्योंकि गांवों में, अब मदरसे नहीं, गांवों में ना, जहां पे जलसों का फायदा बताऊं मैं तुम्हें, जहां पे शादियों में रंडियां नाचती थी, जहां पे शादियों में बैंड बाजे बजते थे, जहां पे शादियों में ढोल ताशे गाजे बाजे होते थे, ये नौजवान इस उम्र के बच्चे डीजो पे नाचते थे। आज जलसों की वजह से अल्लाह ने इनको ये तौफीक दी है कि अल्लाह और रसूल का जिक्र करा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना बड़े बूढ़े मर गए, उन्हें पता ही नहीं था। जी। आज भी देखो इस दुनिया में जी रहे का अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल आला, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम पता ही नहीं। और जरा इम्तिहान लो, गिरेबान में जाको। अगर तुम्हारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, तुमने देखा होगा, इंतकाल होने के बाद जनाजा तैयार कर दिया, जनाजा तैयार, चारपाई पर मुसल्ला बिछा दिया गया, इमाम साहब खड़े हो गए, नमाजी सफे बना रहे हैं। मगर उन्हीं में से आए हुए मेहमानों में से और गांव वालों में से आधे इधर खड़े, आधे इधर खड़े, कुछ लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। जो इधर खड़े हैं, क्या वो मुसलमान नहीं? कैसा मुसलमान जिसको नमाज जनाजे ही याद नहीं? जो इधर खड़े हैं, क्या उनको नमाज जनाजा याद नहीं? तीजे में बिरयानी तो खूब तोड़ के खाते हो, 40वें में भी खाते हो। मगर वो बेटा जो अपने बाप की जमीन जोत रहा है, जो अपने बाप के घर में रह रहा है, अपने बाप का सारा कुछ कारा कमा रहा, बाप दुनिया से गया, अब बेटा खुद अपने बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने के लायक। इतना खूब पता, वैसे बहुत चालाक है। बड़े से बड़े चक्रोट पहले होते थे खेतों में, आधे मैंने काट लिया, आधा आपने काट लिया, इतनी छोटी मेंढ छोड़ी, और सुबह को जब उठा गया ना, तो सुबह को जाकर के फावड़ा भी टेढ़ा ही मार रहा, ऐसे ऐसे मार रहा, टेढ़ा फावड़ा। जलसों में जब ये बातें सुनोगे तब पता चलेगा जलसों से क्या कामयाबी होती। ये मदरसा है, एक रात का मदरसा, इसको मदरसा समझो। जी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। देखा मेंढ पे इन्होंने पेड़ लगा दिए,
तो मैंने मिट्टी चढ़ाते 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 मेंढ उधर कर दी, खेत अपने के पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा हो रहा है कि साहब ये तो मेरे हैं। मैंने जो पेड़ लगाए तो कल्ले निकले, कल्ले मतलब बिल्कुल दिल में जगह नहीं। अब जरा ये तो देखें यार, हमें नमाज जनाजा याद नहीं समझ के, और नमाज जनाजा है कितनी सी। नमाज में जो सुबहाना पढ़ते हो वही है, एक लफ्ज बढ़ती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। व जल्ला सनाउका एक लफ्ज बढ़ती है। नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ा, अल्लाहु अकबर, दुआ पढ़ी, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। इतनी सी नमाज जनाजा। इस मुसलमान के 20 साल का, 40 साल का, 50 साल का हो गया, नमाज जनाजे ही पता नहीं। और सुनो, माँ बाप ना इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, इतने सज्जन हैं। अम्मी और अब्बू ना इतने सीधे, आंखों पे पर्दा डाले पड़े, पर्दा। बताऊं कितना सीधा, बता दूं थोड़ी सी। जी जी। बिल्कुल भोला, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, फसाद फैलाने के लिए बहुत है, वैसे कुछ नहीं जानता। ये बात किताबों की नहीं है, हमारे घर की, तुम्हारे घर की। अब जरा सोचो, बताओ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतने बड़े बच्चे सामने बैठे, इधर बैठे, जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल कहां से चला रहे हैं? 10,000 का मोबाइल जिंदगी में आग लगा दी, आग। इस बच्चे से तीसरा कलमा सुन लूं तो याद नहीं होगा, अब्बा कहां है? तीसरा 5वां कलमा याद नहीं, और बच्चे को तो छोड़ो, अब्बा को नमाज जनाजा याद नहीं। माफ करना, मैं तुम्हें डांटने रही हूं, इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो, मैं वो डॉक्टर हूं जो कड़वी दवा पिला रहा हूं। हो सकता है तुम्हारे किसी काम में आ जाए, जल्द से कराया करो। इससे तुम्हारे एक तो उलमा आएंगे तो घर की बलाएं वबाएं बस्ती की निकलेंगी, और दूसरा तुम्हारे घरों में वो इल्म जाएगा कि तुम्हें मदरसों में नहीं मिलता। तुम जा नहीं सकते मदरसों में।